Now, welcome back to the next session. Here we are going to discuss the centrifugal casting, that is another type of permanent molding or permanent casting process. Is it clear? Okay. So basically, what is the centrifugal casting? Centrifugal casting में क्या होता है? Mold is rotated at high speed. In this process, in the centrifugal casting process, mold is rotated at a high speed so that the molten metal is distributed by the centrifugal force to the outer region of the die cavity. Die cavity is made like hollow shape, okay, pipe like structure, ठीक है. And आपको पाइप वगैरह है, पाइप या either may be of wheel और आपका ये जो होता है ये flywheel that can be made by using the centrifugal cast. बेसिकली ज्यादातर हम जानते हैं कि पाइप जो होता है hollow पाइप जो हम यूज कर म्युनिसिपैलिटी में जो वाटर सप्लाई के लिए यूज करते हैं, that pipe is made by the centrifugal casting process. क्लियर? ठीक है. इसमें क्या होता है, बेसिकली मोल्ड होता है, क्या होता है, रोटेट करता रहता है वेरी हाई स्पीड ओके, एंड मोल्टन मेटल इज poured inside so that it can distribute molten पे आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण क्या होता है, आउटर सरफेस पे क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देता है. ठीक है. यू कैन अचीव हियर द hollow cavity, that is pipe like structure. ठीक है. Centrifugal casting was first invented by the Alfred Krupp. Okay. This is the history of the centrifugal casting. That is this process is invented by the Alfred Krupp, who used this process for manufacturing the railway wheel in 1952. ठीक है. रेलवे व्हील का मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज किया जाता था. लेकिन बेसिकली अभी कौन सा प्रोसेस होता है यूज? रेलवे आपका रेलवे व्हील के लिए कौन सा प्रोसेस अभी यूज होता है स्टील प्लांट में? कोई गए हो आप लोग स्टील प्लांट में? नहीं. ठीक है. फॉर्जिंग आपका हॉट फॉर्जिंग प्रोसेस है. फॉर्जिंग प्रोसेस पढ़ाएंगे तो उसमें पता है. ठीक है. तो ठीक है. तो आपको ये इसको डिवाइड किया है हमने, क्या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड अनदर इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. ठीक है. इन ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, मोल्टन मेटल इज poured into the rotating mold to produce a tubular part, that is our pipe, tube, rings can be manufactured here. This is the product structure. ठीक है. pipe, tubes and rings. ठीक है. that is आपका यहाँ पे क्या होता है, मोल्ड आपका जो होता है रोटेट करता है continuously having a high velocity, high angular speed. okay. तो यहाँ पे molten metal is poured into the horizontal rotating mold at one end. okay. one end क्या रहता है, one end पे क्या रहता है, आपका मेटल को पोर करते हैं. हॉरिजॉन्टल जो आपका मोल्ड कैविटी रहता है, that is one end is connected to the screw here. okay. screw, okay, through which the molten metal inside the mold cavity. okay. and due to this high rotation of the mold cavity, molten metal is centrifugally thrown towards the inside mold wall. mold wall की तरफ क्या होता है, वो centrifugal action के कारण थ्रो हो जाता है, फेंका जाता है. ठीक है. एंड यू आर अलाउड they are allowed to solidify, and after solidification and cooling you will achieve the pipe like structure, tube like structure, etc. ठीक है. तो आपका ये जो आउटर साइड होता है, द कास्टिंग इज यूजुअली ए फाइन ग्रेन कास्टिंग विथ वेरी फाइन ग्रेन आउटर डायमीटर. आउटर डायमीटर पे वेरी फाइन ग्रेन होगा बिकॉज ऑफ क्या होता है, वहां पे कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास बेहतर होता है. आउटर साइड में क्या होता है, आउटर डायमीटर पे क्या होता है, कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक विल बी हियर बेटर, so that we can achieve here the fine grain, and fine grain structure, that is lower, strength will be better. Is it clear? Also the surface finish will be better outside the outside diameter. Is it clear? Please try to understand what I am talking. Okay. Is it clear? ठीक है. impurities or inclusions, if there is an impurity present inside the mold, inside the liquid metal, okay, liquid molten metal, तो क्या होता है, ड्यू टू द इसका क्या होता है, impurities का weight is lighter than that of the mold, that of the pure metal. ठीक है. प्योर मेटल सेल आउट ऑफ impurity का वेट जो होता है लाइटर रहता है. तो ये क्या आता है, इनसाइड डायमीटर जो होता है उस पे आपका आ जाता है नियर टू द सरफेस ऑफ द inner diameter. Is it clear? And that is to be machined after solidification. इसको क्या करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस
करके उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका इम्प्योरिटी विल बी इनर साइड एंड आउटर साइड विल बी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स। ओके, ठीक है। तो दिस इज द सिस्टमैटिक डायग्राम हियर। ये आपका रोटेशन इसका देखो यहाँ पे है। दिस इज द व्हाट, दिस इज द लैडल हियर, मोल्टेन मेटल इज थ्रोन इनटू द दिस pouring basin। It's like it behaves like a pouring basin, is it clear? ठीक है। थ्रू which the it is आपका रनर कह सकते हो इसको, या स्क्रू जो भी हो, स्क्रू जो वर्टिकल, ठीक है, रनर कह सकते हो इसको। रनर के थ्रू क्या करता है, ये मोल्टेन मेटल आपका जो मोल्ड कैविटी जो बना हुआ है, या मोल्ड कैविटी में चला जाता है। उसके बाद देयर इज आपका इसके पास क्या है, मोटर के थ्रू इसको क्या करते हैं, एंगुलर स्पीड देते हैं। एंगुलर स्पीड के बाद क्या होता है, मोल्टेन मेटल आपका इस पे चिपक जाता है, ठीक है, adhere to the outer side diameter of the mold cavity, ठीक है। Now you can achieve there this like the structure here. This is the centrifugal casting process. Okay, look at the animations. How does the centrifugal casting work here? So this is the product। ये जो आपका ब्लू पोर्शन है दैट इज टू बी मशीन हियर। ग्रीन पोर्शन वो क्या है, सरफेस रफनेस या सरफेस स्मूथनेस को अचीव करने के लिए हमने उसको मशीन कर दिया है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल रिलेटेड formula which may be asked in the GATE examination, not basically not in the semester examination में अभी तक नहीं आया है, ठीक है। देखे होंगे कहीं तो बताना, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बाय r। एम आई राइट ना यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही होता है फार्मूला ना। हेलो, यस यस, ओके, ठीक है। वेयर F इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन न्यूटन, m इज द मास इन kg and v is the velocity in meter per second, r is the inner radius of मोल्ड मीटर, ठीक है। तो एक यहाँ पे लेते हैं जी फैक्टर, ठीक है। जी फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज जीएफ, ठीक है। तो इट व्हाट इज दिस, इट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू दैट ऑफ वेट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उसको वेट से डिवाइड कर देंगे, मोल्टेन मेटल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट विल गिव यू द जीएफ हियर, ठीक है, जी फैक्टर, ठीक है। नाउ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v is equal to 2 pi r into n by 60, ठीक है। ये क्या होता है आपका linear velocity होता है। linear velocity is given by 2 pi r into 60, is it clear? 2 pi r n dividing by 60, that will be our meter per second, ठीक है। तो ये आप v का वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। n will be given here 30 by pi root under g gf dividing by r, that will be our required conditions, okay, for n, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यदि जी फैक्टर अभी ज्यादा होगा, देखो जी फैक्टर इज व्हाट है, जी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना ज्यादा रहेगा जी फैक्टर उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। आल्सो जी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एन। देखो यहाँ पे जी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एन, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यदि लिक्विड मेटल, यदि आपका वेलोसिटी कम कर दोगे तो क्या होगा, लिक्विड मेटल गेट्स नॉट स्टिक इन द वॉल ऑफ द मोल्टेन मेटल, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, देयर इज अ स्लीपिंग एक्शन टेक्स प्लेस, स्लीपिंग एक्शन टेक्स प्लेस, ओके, ठीक है। सो दैट यू हैव टू मेंटेन ए सर्टेन स्पीड, आपको क्या है एक सर्टेन स्पीड को मेंटेन यहाँ करना होगा, सो दैट यू कैन अचीव द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ओके। हेलो, okay. Now for vertical centrifugal casting, this is that was for horizontal centrifugal casting process. N has to be calculated here like this by using this formula, and gf is this, and centrifugal force is to know better, okay। In this in the vertical casting process, देखो बिकॉज द ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या होता है, लिक्विड मेटल क्या करता है, टॉप से क्या करेगा, बॉटम में जाने की कोशिश करेगा,
ठीक है, टॉप से बॉटम में जाने का कोशिश करेगा। तो कास्टिंग जो होगा आपका जो थिकर होगा एट द बेस एंड टॉप पे क्या होगा, थिनर होगा। कास्टिंग जो होगा बेस पे क्या होगा, थिकर होगा ड्यू टू द लिक्विड मेटल क्या करेगा, वो ड्यू टू द ग्रेविटी वो क्या करेगा, वो डाउन आने की कोशिश करेगा, देयर इज अ मूवमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो आपका जो बॉटम सेक्शन पे होगा देयर विल बी थिकेस्ट पोर्शन, ठीक है, एंड टॉप पे होगा थिनेस्ट पोर्शन होगा, ठीक है। तो द डिफरेंस इन द इनर एंड आउटर रेडियस कैन बी रिलेटेड टू द स्पीड रेशियो। यदि यहाँ पे इस कंडीशंस में आपका एन निकालना होगा तो आपका 2gl रूट अंडर 2gl डिवाइडिंग बाय r I t square minus r IB square, that is where L is the vertical length of the casting in meter, ये आपका vertical length है, and r I t is the inner radius at top and r IB is the inner radius at the bottom, ठीक है। यदि दोनों बराबर हो गया तो क्या होगा, सपोज आर आई टी एंड आर आई बी विल बी इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, n will be infinity, n will be infinite. It is possible to achieve the n is infinity. Please tell me, is it possible to achieve the value of n that will be infinity? Not. Am I? Are you getting my point? Hello. Yes. Okay. Is there any problem regarding this topic? अब बताओ कुछ, कोई कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। एग्जाम में आएगा ये सब, एग्जाम में मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मतलब दूंगा, ठीक है। तो आपको ये कभी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। In the case of vertical centrifugal casting, you have to use this formula to calculate the value of n, and in the horizontal casting you have to use this formula. Okay, I will share these notes in the Google Classroom. Okay, now semi-centrifugal casting. Semi-centrifugal casting का ये जो फिगर है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। In this process, centrifugal force is used to produce non-tubular parts. That is, part is made solid. ठीक है, solid part क्या हो सकता है आपका, फ्लाईव्हील हो सकता है, फ्लाईव्हील, या आपका क्या हो सकता है, व्हील हो सकता है, एलॉय व्हील हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ आप लोग, रेलवे व्हील हो सकता है, ठीक है। दैट इज द सॉलिड पार्ट, ठीक है। हियर GF is around 15. GF is what? G factor. G factor is taken around 15 by controlling the rotation of speed. ठीक है, G factor को क्या कर सकते हो, स्पीड को कंट्रोल करके हम G factor को भी क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Molds are provided with riser at the center. देखो यहाँ पे आपका क्या है, this is a pouring basin and this is a riser, ठीक है। राइजर से क्या करते हैं, राइजर को क्या करते हैं यहाँ पे सेंटर में प्लेस करते हैं, ठीक है। Molds are provided with riser here. Okay. Generally, the density of the molten metal will be more at the outer section. Obviously, यहाँ पे centrifugal force सबसे ज्यादा अचीव होगा, तो यहाँ पे density, okay, density will be more, and also there is a fine grain structure will be there because of easily cooling taken places there. Is it clear? ठीक है। तो सेंटर पोजिशन पे क्या होगा, लेस डेंसर रीजन होगा, सेंट्रल पोजिशन पे डेंसिटी ज्यादा होगा, कम होगा, और आउटर साइड में डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो आपका लेस डेंसिटी है दैट कैन बी मशीन्ड इजीली, दैट कैन बी मशीन्ड इजीली, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर व्हाट, आपका पुल्ली, व्हील और फ्लाईव्हील बनाने के लिए यूज होता है, ओके। एम आई राइट, एम आई करेक्ट? हेलो, Yes, sir. ओके, ठीक है। Okay, now we are going to discuss about some defects which has been observed in the casting here, ठीक है। तो आपका डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये गेट वगैरह में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफेक्ट, व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द कास्टिंग, ठीक है। कैसे आप क्या करोगे, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे। सैंड ब्लो एंड पिन होल्स, ओके, दिस इज द फिगर ऑफ सैंड ब्लो एंड पिन होल्स। क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ ए बैलून शेप्ड गैस कैविटी, और गैस कैविटी इज यूज्ड बाय रिलीजिंग ऑफ मोल्ड गैसेस ड्यूरिंग द पोरिंग। आप पोरिंग करोगे लिक्विड मेटल में तो क्या होगा, गैस क्या करेगा, ट्राई टू एस्केप
गैस जो होता है मोल्टेन मेटल में वो क्या करेगा, निकलने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, जो गैस इंट्रैप्ट हो गया है, लॉक हो गया है इनसाइड द मोल्ड इन मोल्टेन मेटल, वो क्या करेगा, इवॉल्व होने की कोशिश करेगा। ओके, यदि जो आपका जो सैंड का परमिएबिलिटी है दैट विल बी मच लेस, यदि लो परमेबिलिटी ऑफ सैंड मोल्ड होगा तो आपको क्या होगा, या वेंटिंग आप नहीं दोगे, जो आप वेंट करते हो वो सब नहीं दोगे। वेंट इज यूज्ड टू रिलीज द गैसेस दैट इज लॉक्ड इनसाइड द मोल्टेन मेटल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वेंटिंग भी नहीं दोगे, परमेबिलिटी लो रखोगे, तो क्या होगा, दिस डिफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, हाई मॉइस्चर कंटेंट सब्सटेंस आल्सो विद द यूजेस ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा परमेबिलिटी अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट द लॉक्ड गैसेस दैट इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द molten metal that can be evaporate or escape। okay, ठीक है। next sand wash, next defect is sand wash। okay, surface dip that results from erosion of the sand, surface dip that results from erosion of the sand mold during the pouring, ठीक है। this contour is formed in the casting of the final product। देखो ये this is the sand wash defect है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या होगा, during the pouring process में क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका जो wall है, sand wall है, surface of the sand mold gets erosion, ठीक है, there is erosion, मतलब यहाँ पे erosion हो गया, इसका कटाव हो गया, ठीक है। तो कटाव हो गया तो ये शेप इसका चेंज हो गया, तो ये आपका आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द प्रोडक्ट लुक लाइक दिस, ठीक है, ये प्रोडक्ट का जो शेप वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज आवर सैंड वाश डिफेक्ट, ठीक है। यू हैव टू गो फॉर द मशीनिंग प्रोसेस टू अटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। ओके, ओके, करेक्ट, करेक्ट, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ अनदर डिफेक्ट इज स्क्रैप, ठीक है। तो स्क्रैप इज यू कैन से इट इज द सरफेस डिफेक्ट, सरफेस पे यहाँ पे हो रहा है ना, दैट इज द सरफेस डिफेक्ट, ठीक है। सरफेस डिफेक्ट इसको कहते हैं। इट इज काउज्ड बाय प्रोपोर्शन ऑफ मोल्ड सरफेस फ्लैकिंग ऑफ, ठीक है। फ्लैकिंग ऑफ एक वो जो चिपरे टाइप के उखड़ते हैं, दैट इज नॉट द फ्लैकिंग ऑफ, ठीक है, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एंड gets embedded in the casting surface, that is why it is called the surface defect। surface defect में क्या है, कॉपरी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बन जाता है, ठीक है। ये भी आपका कुछ इम्प्यूरिटीज वगैरह या गैस के कारण हो सकता है। जनरली आपका जो होता है ये फ्लैक्स स्ट्रक्चर होता है, फ्लैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट विल बी नोन एज आवर scrap। scrap is related to the surface only, यहाँ पे रखना हमेशा, ठीक है। that is why it is called the surface defect। scrap is what? Scrap is a surface defect। now what is penetration? Now second next one is penetration। okay, surface defects that occurs when liquid penetrates into the sand mold as the fluidity of the molten metal is high। फ्लूइडिटी कहने का मतलब क्या होगी, आप पोरिंग टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई रखे हो, फ्लूइडिटी मतलब क्या, छोटा से छोटा वो आपका जो होल होता है या छोटा से छोटा जो गैप भी होगा आपका दो सैंड पार्टिकल के बीच में, उसमें भी वो इंटर कर जाएगा। बात समझ में आई? तो उसका लिक्विड मेटल का फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, वो पेनिट्रेट कर जाएगा विद इन द सैंड, दो सैंड के ग्रेन के बीच में वो इंटर कर जाएगा। दैट इज नोन एज आवर पेनिट्रेशन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हियर। यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज द पेनिट्रेशन टाइप ऑफ डिफेक्ट। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, यू हैव टू गो फॉर द मशीनिंग प्रोसेस। आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, आपका कॉस्ट भी बढ़ा देगा। ओके, तो इसको आपका इसका रेमेडीज क्या हो सकता है, इसको रेमेडीज क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको हार्डर रैमिंग करेंगे, ठीक है। हार्डर रैमिंग ऑफ सैंड मोल्ड मिनिमाइजेस द डिफेक्ट। हार्डर रैमिंग कहने का मतलब क्या है, इसका पोरोसिटी को कम कर दिए, रैमिंग फोर्स ज्यादा हम देंगे तो क्या होगा, आपका कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्शन होने के कारण क्या होगा, देयर इज ए लेस पोरोसिटी, देयर विल बी लेस पोरोसिटी। लेकिन हम पोरोसिटी एक मेंटेन करेंगे, इतना ज्यादा भी पोरोसिटी कम नहीं करना है ताकि वो हमको दूसरा क्या मिल जाए, हमको सैंड ब्लो और पिन होल्स मिल जाए, ठीक है। ये डिफेक्ट को भी हमको बचाना होगा, ठीक है।
there may be optimum value of the porosity. Okay, ठीक है. Now we are moving towards the next defect, that is our mold shift. देखो mold shift में क्या हो गया, बेसिकली आपका पार्टिंग लाइन के अक्रॉस क्या हो गया, पार्टिंग लाइन के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑफ कॉप एंड ड्रैग साइड स्ट्रक्चर. ठीक है, कॉप एंड ड्रैग साइड जो आपका जो मोल्ड बनाया थे उसमें क्या हो गया, देयर इज ए आपका क्या होगा, देयर इज ए स्लाइडिंग. स्लाइडिंग यहाँ पे हो गया. Okay, okay. So this result is this results in a step in the cast प्रोडक्ट एट द पार्टिंग लाइन. पार्टिंग लाइन के थ्रू ही ये क्या होता है, डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है. ठीक है, यहाँ पे आपका कोप एंड ड्रैग साइड जो होता है शिफ्ट कर जाता है. ओके, अबाउट द पार्टिंग लाइन. ओके, टू एलिमिनेट दिस व्हाट यू हैव टू डू, एनीवन? इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैप एंड ड्रैग को टाइटली क्लैंप करना पड़ेगा, है ना. कॉप एंड ड्रैग जो होता है दैट इज आवर पोर्ट, है ना, एक बर्तन है. ठीक है, कॉप एंड ड्रैग फ्लास्क, उसको क्या करना है, टाइटली आपको क्लैंप करना पड़ेगा. उसमें आपका क्या होगा, देयर इज यू हैव टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ पोर शिफ्ट, सॉरी मोल्ड शिफ्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर पोर शिफ्ट. ठीक है, पोर शिफ्ट क्या है, पोर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द hollow cavity in the mold. Okay, ये प्रोडक्ट में hollow cavity बनाने के लिए यहाँ पे कोर क्या है, मिडिल से क्या है, शिफ्ट कर दिया. कोर हैज बीन शिफ्टेड अपवर्ड. ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर इज वर्टिकली. कोर शिफ्ट एंड मोल्ड शिफ्ट आर caused by the buoyancy of the molten metal. यहाँ पे buoyancy का कांसेप्ट पढ़ाया था एक बार, buoyancy का न्यूमेरिकल भी कराया था. ठीक है, ड्यू टू द buoyancy force, कोर क्या किया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया. दैट विल बी आवर force defect. Okay, another defect is what, mold crack. ठीक है, how the mold crack takes place. ठीक है, यहाँ पे क्या है, mold crack यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, that is the fin like structure. Okay, and fin like defect in the cast product that occurs when the mold strength is less. mold strength यदि ज्यादा mold strength जो है कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो वाल होता है उसमें क्रैक आ जाता है. सैंड मोल्ड का जो आप वाल बनाया है उसमें क्रैक आ जाता है. क्रैक आने से क्या होगा, वहां पे आपका लिक्विड मेटल क्या करेगा, इंटर कर जाएगा. ठीक है, एंड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यू विल गेट दिस लाइक ऑफ स्ट्रक्चर हियर. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मोल्ड क्रैक. ओके, हेलो, यस सर. ओके, ठीक है. Now Mishran has been asked about many times in the many examinations. What is Mishran? ठीक है, मिश्रण में क्या आप देखते हो, देखो दिस इज द फिगर ऑफ मिश्रण यार. ठीक है, मिश्रण में बेसिकली क्या होता है, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी. देखो यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा ना, यहाँ पे देयर इज सम गैप है. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज मिश्रण? मिश्रण इज that defect which is observed in the casting, okay, in which the casting solidifies before completely filling the mold cavity. mold cavity को fill होने से पहले क्या हो गया, वो solidify हो गया है. is it clear? that is known as our मिश्रण. याद रहेगा मिश्रण क्या होता है, याद रहेगा? यस सर. okay. This occurs because of some, there may be some reasons here. This occurs due to the low fluidity of molten metal. molten metal का fluidity low है, that is अब pouring temperature बहुत कम हम रखे हैं. ठीक है, तो fluidity will be less here. Okay, low pouring temperature. ठीक है, pouring temperature is here low, जैसा आपको पता है अभी. ठीक है, okay, slow pouring. ठीक है, स्लो पोरिंग आप आराम से ले जा रहे हो. ठीक है, आराम से ले जा रहे हो तो हीट गेट्स रिलीज हियर. हीट क्या करेगा, रिलीज हो गया, मतलब पोरिंग टेम्परेचर गेट्स लोअर. ऑब्वियसली पोरिंग टेम्परेचर गेट्स लोअर यदि आप इजीली काम कर रहे हो, स्लो काम कर रहे हो. ठीक है, तो देयर इज ए इंक्रीज इन द फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल. ओके, नाउ इट गेट्स solidify instantly. Okay, by complete without completion of the complete mold. Okay, so that okay, and next one is thinner cross section of the mold. ये thinner cross section होता है तो क्या होता है, इसलिए वो सॉलिडिफाई हो जाता है, हीट जल्दी से रिलीज कर देता है. और complete filling of molten metal is not possible in that cases. That is all the reasons about the Mishran defect. Okay,
तो मिश्रण यदि पूछेगा तो आप बता सकते हो एग्जाम में, उम्मीद हम यही करते हैं, आप बता दो, ठीक है। नाउ व्हाट इज कोल्ड सट? कोल्ड सट एक होता है और एक होता है कोल्ड शॉर्ट, ठीक है। तो कोल्ड सट क्या होता है, देखो आपका क्या है, दिस डिफेक्ट ऑकर व्हेन टू पोर्शंस ऑफ मोल्टेन मेटल टुगेदर बट नो फ्यूजन ऑकर्स बिटवीन दिस, ठीक है। आपका कोर किसी मेटल का बना है, उसके बाद मोल्टेन मेटल है, तो ये क्या होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, ये फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या होता है, देयर में बी सम फ्यूजन्स, ठीक है। तो दिस but no fusions occurs between them due to the premature solidification, ठीक है, premature solidification of the molten। तो ये दोनों का क्या होता है, दोनों का जो होता है आपका फ्यूजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये डिफेक्ट आपका आ जाता है, ठीक है। इसको आपको मिनिमाइज करने के लिए, कोल्ड शॉर्ट को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलिमिनेट करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द सुपर हीट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगेन यू हैव टू इंक्रीज द फ्लूइडिटी, फॉर इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी यू हैव टू इंक्रीज द pouring temperature, okay, that will be our remedy for elimination of the cold short। cold short क्या होता है, ठीक है, cold short क्या होता है, देखो यहाँ भी क्या है, cold short यहाँ पे दिख रहा है, that is what, that is the forming of solid, क्या लिखा है, ग्लोबल्स ऑफ मेटल दैट आर इंट्रैप्ड इन द कास्टिंग, मेटल दैट आर इंट्रैप्ड इन द कास्टिंग। कास्टिंग के आपका क्या है, कास्टिंग का ड्यूरेशन में कुछ मेटल जो होता है ना इंट्रैप्ट कर जाता है, दैट इज आवर कोल्ड शॉट, दैट इज नोन एज आवर कोल्ड शॉट, ठीक है। प्रॉपर पोरिंग प्रोसीड्यूर एंड गेटिंग सिस्टम डिजाइन to prevent this defect, you have to go for the proper design of the pouring process, okay, and getting system to minimize or eliminate the cold short process, okay। hello, Yes, sir. okay। Yes, now sir. another is shrinkage cavity, okay। shrinkage cavity is, देखो यहाँ पे क्या है, cavity in the surface or internal void in the casting, ठीक है। internal void और आपका surface पे होता है आपका, there is a shrinkage during solidification process। solidification process में क्या होता है, shrinkage होता है, ठीक है। यदि आप मान लो कि इसको फिल करने के लिए क्या चाहिए, आपका राइजर चाहिए, यदि राइजर का मेटल यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, देयर मे बी सम श्रिंकेज कैविटी, दैट इज नोन एज आवर डिफेक्ट हियर, दैट इज आवर श्रिंकेज कैविटी डिफेक्ट हियर, ओके। इसको पाइप भी बोलते हैं, समटाइम इट इज कॉल्ड पाइप डिफेक्ट। ये आपका ये भी एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज पाइप, व्हाट इज पाइप डिफेक्ट, ओके। तो टू एलिमिनेट द श्रिंकेज कैविटी यू हैव टू डिजाइन द प्रॉपर राइजर, ठीक है, प्रॉपर राइजर का डिजाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोपोरोसिटी। माइक्रोपोरोसिटी इज व्हाट, देखो आप नेट लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होता है, दिस इज ऑकर्स, माइक्रोपोरोसिटी इज ऑकर्स ड्यू टू द लोकलाइज्ड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ठीक है। लोकलाइज्ड सॉलिडिफिकेशन, यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज नहीं हो रहा है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे श्रिंकेज हो रहा है विद इन द सिस्टम और विद इन द मोल्ड, ठीक है, किसी पॉइंट पे पार्टिकुलर पॉइंट पे श्रिंकेज हो जा रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, चिल्स डालते हैं, चिलर डालते हैं ना, चिल्स डालते हैं, सो यूनिफॉर्म कूलिंग, ठीक है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ एलिमेंट डालते हैं जो यूनिफॉर्म डायरेक्शनल कूलिंग हमको प्रोवाइड करे, ठीक है। So that can be minimized by using the chill, that is our micro porosity, okay। हॉट ईयर्स, देखो हॉट ईयर्स का बहुत सारा एग्जांपल्स यहाँ दिया है, ठीक है। तो हॉट ईयर्स क्या है, इंटरक्रिस्टलाइन फेलियर, इंट्राक्रिस्टलाइन फेलियर, देखो इंट्राक्रिस्टलाइन फेलियर आपका यहाँ पे हो गया, ये कब होता है, एट द हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, वेयर इट हैज बीन ऑब्जर्व हियर the portions having difference in the cross sections, ठीक है, differences in the section thickness, abrupt changes in the section thickness, अचानक से चेंज आ गया इसका थिकनेस में, ठीक है। यहाँ देखो अचानक ये डायमेंशंस का, अचानक ये डायमेंशन का, देयर में भी ये चांसेस हॉट ईयर, ओके। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपर सरफेस में क्या है आपका हॉट ईयर ऑब्जर्व हुआ यहाँ, ठीक है। टू मेनी ब्रांचेस कनेक्टेड टू दिस सेक्शन, सर आपका यहाँ भी ब्रांच कनेक्टेड है यहाँ पे,
तो ये आपका सेंसिटिव जो पोर्शन होता है आपका, उस पोर्शन पे ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, हॉट ईयरिंग समझ में आया, कहाँ कहाँ पे होगा? थिक सेंसर, थिक तक आपका जो है डिफरेंस इन थिकनेस जहाँ पे चेंज हो रहा है, या अब्रप्ट चेंज इन सेक्शन जहाँ पे अचानक से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मेनी ब्रांचेस आर कनेक्टेड सेक्शन जहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन है। ठीक है, एंड यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस टाइप ऑफ दैट इज हॉट ईयरिंग इन दिस ऑल फिगर्स। ओके, तो आपको इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको फिर से कास्टिंग और मोल्ड को रीडिजाइन करना पड़ेगा। ओके, that is all about the casting defect. Okay, now we have hope we have completed the casting today, and I will start the next next module, that is our forging na. Hello.